So hello guys, I am Tanvi and I welcome you all to my channel Tanvi Education. So guys, आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइनमेंट. Before starting the discussion, I would request you all to like and share the video and share it with your friends, and please subscribe my channel. So let's now start the video. So World War One. When was the World War One took place? World War One कब हुआ? It took place in 1914 to 1918. The World War Two. It took place in 1939 to 1945. वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं. वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो फोर्सेस थी, अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर. अलाइड फोर्सेस के मेंबर्स थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस. एक्सिस पावर के मेंबर्स थे जर्मनी, जापान एंड इटली. सो अलाइड फोर्सेस won the World War II and the members of Axis power like Germany and Italy were destroyed because the World War II took place in the Europe area and the two countries located in the Europe itself, and the Japan was destroyed by the dropping of the nuclear bomb by USA. So जो यूएसए है उसने जो जापान है उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था, उसकी वजह से जापान भी वर्ल्ड वॉर टू से एंड हो गया था और जो अलाइड फोर्सेस हैं वो वर्ल्ड वॉर टू जीत गई थी. सो जो दो बॉम्ब जापान पे डाले गए थे यूएसए के थ्रू, वो थे, पहला डाला गया था हिरोशिमा पे जिसका नाम था लिटिल बॉय on 6th August 1945, and the second one was dropped on Nagasaki. The name was Fat Man and was dropped on 9th August 1945. So please remember the date and the name. It could be asked in the paper for the one marker that what was the name of what was the code name of the bomb that dropped on Japan. So guys, here the America justified the situation that why he has dropped the nuclear bomb on the Japan to end the war, where only the Japan was left in the Axis power. सिर्फ जापान ही रहता था एक्सिस पावर में और वो कुछ ही दिनों में अपने आप को सस्पेंड करने वाला था उसमें से, पर फिर भी अमेरिका ने क्यों उस पे बॉम्ब डाल दिया, अब हम वो पढ़ेंगे. America justified itself by saying that he dropped the bomb to end the war. अमेरिका ने क्या कहा कि उसने जो बॉम्ब है जापान पे क्यों डाला, वॉर को एंड करने के लिए, क्योंकि वॉर बहुत ज्यादा लंबी चल गई थी तो उसे एंड करने के लिए उसने बॉम्ब डाला था. बट इन रियलिटी, पर हकीकत कुछ हो रही थी. अमेरिका वांटेड टू टेस्ट इट्स न्यूक्लियर वेपन. जो अमेरिका था वो सुपर पावर बनना चाहता था और उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो उसने बनाए थे वो टेस्ट करने के लिए उस पे जापान पे बॉम्ब डाले थे, एंड टू शो इट्स पावर टू द वर्ल्ड. और वो वर्ल्ड को अपनी पावर दिखाना चाहता था, वर्ल्ड को सप्रेस करना चाहता था, खुद को सुपर पावर बनाना चाहता था, तो इसलिए ही उसने जापान पे बॉम्ब डाले थे. तो आफ्टर द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू डायरेक्टली the Cold War started, which was held in the time period of 1945 to 1991. So what was the Cold War? It was an indirect confrontation between the USA and the USSR and their respective alliances. जो कोल्ड वॉर था वो कोई डायरेक्ट वॉर नहीं था, कोई आर्म्ड रिबेलियन नहीं था. कोल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ था कि जो यूएसए हैं और यूएसएसआर है इनके बीच में मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकली वाइज कंपटीशन चल रही थी. कुछ कुछ क्राइसिस भी हुए जहाँ पे वर्ल्ड वॉर थर्ड होने के चांसेस भी हुए, पर with the discussions and deliberations the situation was controlled. So this can also be asked in one marker, the definition of the Cold War, so you can learn from here.
The second topic was alliances that was built in the Cold War. The two alliances were formed: Western Alliance and Eastern Alliance. Western Alliance is also known as First World, and the Eastern Alliance is also called as Second World. Western Alliance means West, USA, the supporters of USA, and the Eastern Alliance were the supporters of USSR, which lies in the east of the world map. So, the Western Alliance, the member of Western Alliance were mainly the members of West world: USA, Britain, France, West Germany, Spain, etc. And the members of Eastern Alliance were USSR, East Germany, Slovakia, etc. So what were the ideologies that was followed by Western Alliance? Western Alliance किस ideology पे काम करता था? कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी. कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है? कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि स्टेट के अंडर में बस सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर होता है, और जो डिमांड एंड फोर्सेस हैं वो मार्केट के अंडर होती हैं. पर जो ईस्टर्न अलायंस है, यूएसएसआर के सपोर्टर्स और उनकी कंट्रीज, उन्होंने फॉलो करी थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. सोशलिज्म के अंदर जो सब कुछ पब्लिक होता है और सारी जो भी कंपनीज, फैक्ट्रीज, लॉ एंड ऑर्डर, मैन्युफैक्चर, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, ऑल आर द अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट ओनर और हेड ऑफ द गवर्नमेंट. Now, first crisis that emerged after the World War II under the Cold War was Cuban Missile Crisis. Under this, the Cuba, which was an ally of USSR, जो ally वो USSR जो कंट्री है उसका सपोर्टर था. मीन्स ये कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को फॉलो करता था. पर जो क्यूबा है वो किसके नीचे था? जो अमेरिका है ना, जस्ट उसके नीचे ही क्यूबा लोकेटेड है. जैसे इंडिया के नीचे श्रीलंका है, वैसे ही यूएसए के नीचे ही क्यूबा है. वो एक आइलैंड नेशन है और वो यूएसएसआर का सपोर्टर था. तो जो यूएसए है, तो जो यूएसएसआर है वो क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था. तो अब पढ़ते हैं क्या हुआ था. इन 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुए? 1962. Cuba got afraid that USA will forcefully occupy its territory and change Cuba into capitalist country. जो क्यूबा है वो अफ्रेड था, मतलब डरा हुआ था यूएसए से कि वो फोर्सफुली उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसे एक कैपिटलिस्ट नेशन बना देगा, कैपिटलिस्ट कंट्री बना देगा. और वो फॉलो करता था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. तो उसने यूएसएसआर को बताया. यूएसएसआर ने क्या किया? सो क्यूबा sought help from USSR. USSR built its military base into Cuba. USSR ने क्या किया? अपना मिलिट्री बेस है वो क्यूबा में लगा दिया. अपनी सारी मिलिट्री शिप्स क्यूबा की तरफ शिफ्ट करने लगा. और ये बात जब यूएसए को पता चली, 3 वीक्स के बाद पता चली थी यूएसए को, तो यूएसए ने डायरेक्ट मैसेज भेजा यूएसएसआर को कि stop this. So now we read. USA came to know about this and stopped the USSR ship which were coming towards the Cuba. The two superpowers here come face to face, and the condition emerged was of the World War III. But after the several discussions, the situation normalized. क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर थर्ड होने की नौबत आ गई थी, पर डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस के थ्रू जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो गई, क्योंकि सबको पता था कि अब यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही सुपर पावर्स हैं, दोनों के ही पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड हो गया तो द नेशन वर डिस्ट्रॉयड, द होल वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड. सो द सिचुएशन वाज नॉर्मलाइज्ड. The second crisis of the Cold War was Korean crisis. It took place in 1950 to 1953. कोरियन क्राइसिस. जो एक कंट्री है कोरिया, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया.
So North Korea follow the ideology of socialism and communism. Socialism and communism. So North Korea was the supporter of USSR, and South Korea follow the ideology of capitalism and democracy, and it supported USA. So the war continued for the 3 years, and at the last it ended with discussions and deliberations. जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का जो वॉर था, जो क्राइसिस थे, वो 3 साल में एंड हुए थे with the discussions and deliberations. So here the part 1 of the video is ended, and I request you all again to subscribe my channel, and please like and share the video and share it with your friends. Goodbye and have a nice day.